Hello everyone. Good afternoon all of you. I hope you are fine. Today we are starting with our next topic of the motion chapter if ninth class is going on. So yesterday we discussed about their different terms: distance, displacement, speed, velocity and acceleration. And today we will discuss about related with your graph. Okay, we discussed some topic of the graph also. If we are drawing graph of the different two quantities, then what are their magnitude of these graph, how you can find it. So yesterday I told you that two terms we can find there using their graph in ST, that by using your slope of the graph and second your area under the curve. In ST graph के अंदर अगर हम slope find करते हैं, then slope of the ST graph will give us velocity, but area under the curve, that is our not possible relation. So same we are doing today velocity time graph. In velocity time graph, if we are drawing, then this one our velocity time graph. In your VT graph, if we are drawing there, so here any different two values we are taking in a velocity time graph. Here 0, 2, 4, 6, 8. Okay, here we are using their time second. If we are taking here 1, 2, 3, 4. This one our velocity meter per second. Clear? So here we are drawing this one graph like this one. For example, this one we are drawing. Then area under the curve of any slope. Okay, generally if we are taking any graph, जर्नल कोई ग्राफ लेते हैं हम, उसके अंदर तो अगर स्लोप हम फाइंड करते हैं तो स्लोप हमारा क्या होगा उसके अंदर 0 to t सेकेंड एंड वेलोसिटी vt टाइम ग्राफ के अंदर मीटर पर सेकेंड. देन हियर any curve we are drawing here. So initially we are taking here point A, second we are taking point B, then here we will discuss their V1, V2. On this one point time is T1 and on this one point time is T2. Clear? So in your velocity time graph, slope of any graph we can write there. Slope of VT graph we can write there change along y axis. Slope and क्या बताया था, something change along y to the something change along the x. तो हम y के along क्या ले रखा हमने, velocity ले रखा, और t के along क्या ले रखा है, x के along क्या ले रखा हमने, time ले रखा है. So change along y axis, y में कितना change आ रहा है y के along. On this one point B velocity is V2 and on the initial point on A velocity is V1 and finally time T2 minus T1. So here this one ratio change along the velocity to the change along time. This one ratio we can write there acceleration. That we will call it what? Acceleration. Okay. Next term, अगर हम slope निकालते velocity time graph के अंदर तो वो slope किसके equal होता है in VT graph? Acceleration. Next, if we are finding there, अब slope की जगह क्या निकाल रहे हैं? Slope will be equal to acceleration. Then area under the curve. Area under the curve, area under the curve in velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या है, एरिया अगर हम फाइंड करें तो एरिया का क्या होगा, दिस साइड इनटू this side. So this side will be given your velocity and along x axis given your time. So change along velocity into time. So this one factor velocity into time, then we can call it distance and displacement. So this one will be equal to our displacement. Clear? So any graph will be given. First आपको चेक करना है कि किस चीज का ग्राफ आपको गिवन है, उस ग्राफ की हेल्प से आप क्या फाइंड करने हो. अगर आपको स्लोप फाइंड करे देन टेक योर रेशियो अलोंग y to x, तो वो रेशियो किस क्वांटिटी के इक्वल आएगा, दैट क्वांटिटी विल बी गिव अस बाय यूजिंग द स्लोप. एंड देयर एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या रहेगा, दिस इनटू दिस, v into t displacement. So velocity into time हमेशा क्या देगा आपको, displacement देगा. तो acceleration time displacement we can find by using your velocity time graph. Okay, for example this one graph is given. Okay, second your question is there, velocity time graph is given, any velocity time graph is given, then here 0 1 2 3. Your second, this one time is given, then here velocity given in meter per second, your graph is given 2 4 6.
In this one graph your curve is given like this one. जो आपको कर्व गिवन है वो इस तरीके से गिवन है इस ग्राफ के अंदर. Here O P Q R. So your question is there in velocity time graph. In velocity time graph, find your first part. Okay, हमें क्या find करना है? First we have to find out O to P. Find O to P. Find acceleration O to P. नेक्स्ट पार्ट में इसी ग्राफ को यूज करते हुए देन वी हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. व्हाट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू R. क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है यूजिंग दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड देयर एक्सेलरेशन एंड देयर डिस्प्लेसमेंट. सो हाउ यू कैन फाइंड? फर्स्ट वी शुड नो अबाउट देयर एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ क्या रिलेशन रहेगा. सो हियर वी कैन राइट देयर सॉल्यूशन. हाउ वी कैन सोल्व इट? सो एज वी नो अबाउट दिस वन एक्सेलरेशन, एज वी नो acceleration will be equal to our change in velocity. Change in velocity per unit time, that is your acceleration. तो change in velocity हमारा क्या हो जाएगा? acceleration we can write there final velocity minus initial velocity divided by your change in our time. So change along your velocity, change along time. तो हमारे पास ग्राफ गिवन है तो हमारा क्या है? y एक्सिस टू दी x एक्सिस. तो रेशियो हमें फाइंड करना. तो रेशियो हमसे कहाँ से मिलेगा? स्लोप ऑफ द बीटी ग्राफ. अगर इस ग्राफ का स्लोप अगर हम फाइंड कर देंगे तो वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा. तो वही हमें फाइंड करना है. स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ will be equal to our acceleration. कहां से आएगा acceleration? इन दोनों का change along this velocity to the this time, then it will be give us acceleration. So using this one graph, then we can write there. Here we can write acceleration will be equal to A will be equal to how much change? कहां से कहां निकाल रहा है acceleration? From कहां से कहां तक? O to P. O से P तक की निकाल रहा है. O से P तक का स्लोप. So on this one point, then 4 meter per second and time will be equal to 1 second. So acceleration will be equal to V2 minus V1, T2 minus T1 we can apply here. So final velocity on P point, it will be 4 and initial velocity on the O point, then it will be equal to 0. Final time on this one point 1 and initial it will be equal to 0. तो 4 minus 0 it will be equal to 4 only and 1 minus 0 क्या आ जाएगा आपके पास? जी 1. ओके, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू आवर 4 मीटर पर सेकेंड. कहां से कहां तक? O से P तक. फ्रॉम हियर टू देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद क्या है? नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को बोल रहा है. कहां से कहां तक? P to R. वेयर? P to R. तो यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कैसे करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो हमें पता डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. एज वी नो वेलोसिटी इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी. सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू योर वेलोसिटी इनटू आवर टाइम. क्लियर? अब इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या फाइंड करनी? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी. और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वीटी के फॉर्म में वेलोसिटी इनटू टाइम. सो दिस वन टर्म इनटू दिस वन, देन इट विल गिव अस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. और दिस इनटू दिस का मीनिंग क्या है? अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे तो वो हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा. सो इन दिस ग्राफ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर the curve. Okay, which curve? P to R. P to R. P to R. Okay, one curve is this one. So downside of this one area we can take triangle plus your
right triangle. Clear? So here we will use this one, P to R. So your displacement S will be equal to your area of PQ and this one point. Area of rectangle plus area of right triangle. Which one right triangle? This one right triangle. Iska area. Clear? So how we can find this one? इसी के अंदर हम फाइंड करेंगे. सो हियर हाउ वी कैन राइट दिस वन, एस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल प्लस योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल वी कैन राइट देयर वन साइड इनटू साइड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी कैन राइट देयर हाफ बेस इनटू आवर हाइट. सो नाउ बट वी विल चेक देयर साइड. हम साइड चेक करेंगे राइट ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगी वैल्यूज. सो दिस वन योर राइट ट्रायंगल, वन साइड देयर विल बी 1 and 2, देन इट विल बी योर 1 second, 2 minus 1 1 second. So this one side will be left 0 to 4, then it will be your 4 only. So this one your 4 into your 1 क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का 4 into our 1 plus your right triangle base into height. Okay, this one your right triangle, इसके अंदर base क्या रहेगा, this one will be our base and this one will be height. So this one will be your 3 minus 2 1 and here height will be there 0 to 4, then it will be 4 into 1 only. So this one our 4 into 1. Okay, तो ये क्या हो जाएगा हमारा base into height हो जाएगा. So here we can write there 4 plus here we can write there 2 plus here 2 only. तो हमारे पास S क्या आ जाएगा, S will be equal to our 6 only. ये क्या आ जाएगा, S equal to 6, that is equal to मीटर. ओके, क्या निकाल रहे थे हम, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या गिवन है, मीटर पर सेकंड. सो डिस्प्लेसमेंट वी कैन राइट देयर 6 मीटर. Clear to everyone? I hope you understood. Beta, any graph will be given of velocity and time graph, then how we can find which quantity we can find by using their VT graph. Okay, next will be there, then next will be your area acceleration time graph. Acceleration time graph. AT. If your AT graph is given, this one acceleration means meter per second square. I told now how you can write its unit, that is change in velocity per unit time. So unit you can write there meter per second square. So अगर acceleration time graph given है, any curve we are using in this acceleration time graph, initially we are taking their position. Here let we are taking A point, second point we are taking, and here your acceleration initially is A naught and here your A1, then on this one time is T naught and here timing is your T1. क्लियर? ये आपको ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ के अंदर कह रहा है फाइंड देयर using this AT graph which quantity we can find there. So in AT graph, first if we are talking about the slope, then slope of this graph we can write there. Slope will be change along y to x. अभी मैंने बताया था किसी भी टर्म का स्लोप बेटा क्या होता है, स्लोप हमेशा क्या देगा आपको, चेंज along y axis to the change along your x axis. Okay, del y by del x, that is symbol for the change. Okay, तो कितना चेंज y के along आएगा, डाउन साइड चेंज इन द x axis. So here slope we can write there, change along means y के along हमारा क्या है, acceleration है. So acceleration a2 minus a1 divide by your t2 minus t1, ये रिलेशन आएगा. बट क्या ये रिलेशन कोई डिफाइंड रिलेशन है, acceleration by time is any relation? क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. ओके, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी. क्या ये कोई रिलेशन है, डिफाइंड रिलेशन?
नो ना, दिस वन इज अ अनडिफाइंड रिलेशन. एक्सेलरेशन बाय टाइम इट इज नॉट एनी रिलेशन. रिलेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम. इसको इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई. सो एक्सेलरेशन इनटू टाइम विल गिव अस चेंज इन द वेलोसिटी. सो दिस वन इज नॉट डिफाइंड एनी रिलेशन, नॉट डिफाइंड. ये कोई रेशियो क्या है? डिफाइन ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड दिस रेशियो. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप का कोई रोल ही नहीं होता कि हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में विद हेल्प ऑफ द स्लोप वी कांट फाइंड एनी क्वांटिटी. ओके, दिस वन आवर अनडिफाइंड टर्म. सो नेक्स्ट विल बी एरिया अंडर द कर्व. ओके, इसी को यूज करते हुए अगर हम एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड कर रहे हैं, सो एरिया अंडर द कर्व इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर अब मैंने बताया था एक्सेलरेशन टाइम एरिया अंडर द कर्व का मीनिंग क्या होता है? दिस इनटू दिस साइड. ओके, एरिया मींस साइड इनटू साइड. मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ द एरिया. सो दिस साइड इनटू दिस साइड एंड दैट इज एरिया अंडर द कर्व. अगर हम ए बी कर्व की बात कर रहे हैं तो इसके नीचे का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू आवर ए इंटू टी. सो हेयर वी कैन राइट देयर ए इंटू टी. और a इंटू टी हमें पता है, a इंटू टी क्या होता है? चेंज इन द वेलोसिटी. सो दिस वन इक्वल टू योर चेंज इन वेलोसिटी. When we will write their acceleration time graph area under the curve in AT graph we will find. तो ये किसके इक्वल आता है? हमारा चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल आता है. So we can write their v minus u equal to our AT. Clear to this one? So if any graph will be given, for example any question is there in acceleration time graph, in acceleration time graph your graph is given like this one, acceleration meter per second square and time is there, then here 0. Okay, here we are writing their time 1 2 3 4, this one second, then here this one your time is there. टाइम क्या रहेगा आपका? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2 4 6 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन एटी ग्राफ find change in velocity, change in velocity from curve. Any curve we are drawing, any curve, this one curve we have taken here, point we are using there O P Q R. This one point let we are taking there S. Clear? So change in velocity we have to find out in curve P to R. P to R के लिए हमें क्या फाइंड करना है? चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है. सो हाउ वी कैन फाइंड देयर? अब हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को यूज करते हुए कैसे आएगी. अभी मैंने दो फैक्टर बताए, एक तो स्लोप बताया. स्लोप में क्या होता है? चेंज अलोंग वाई एक्सिस a2 माइनस a1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1. अब अगर ये फैक्टर अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या ये वेलोसिटी हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी? यू कैन राइट इट विल बी इक्वल. नो ना, इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और a इंटू टी का मीनिंग क्या होगा? दिस इंटू दिस इन केस ऑफ द ग्राफ. तो यही हमें फाइंड करना है इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ pt. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहां से p टू q निकालना है. तो p टू q के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व p टू q. तो इस कर्व से यहां तक का क्या हम एरिया निकाल लेंगे? वन इज दिस वन रेक्टेंगल और ये क्या रहेगा आपका? ट्रेपेजियम. ओके, ये क्या है? आपकी रेक्टेंगल है. तो एक तो रेक्टेंगल का एरिया. सो इन एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. ओके, विच कर्व? विच वन गिवन इन आवर क्वेश्चन? कौन सी कर्व है? P टू Q.
P2 R तक जो कर्व है उसके नीचे का जितना भी एरिया आएगा वो एरिया हमारा किसके इक्वल आएगा, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल आएगा। सो यही हमें निकालना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व P2R। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, दिस वन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर क्या है आपका, दिस साइड इंटू दिस साइड, यही एरिया होता है। तो दिस साइड कितनी हो जाएगी 4 एंड दिस वन साइड 3 माइनस 1, देन इट विल बी इक्वल टू 2। सो दिस वन 4 इंटू 2 दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस वन नॉट रेक्टेंगल बेटा, दिस वन योर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ना दिस वन, ये कंप्लीट हमारी क्या है ट्रेपेजियम है। तो किसका एरिया हम यूज करेंगे, ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम। ओके, और ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता होना चाहिए क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यू शुड नो फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड। अगर एक पैरेलल साइड हमारे पास क्या है, ये पैरेलल साइड है, सेकंड इज दिस वन साइड, और हाइट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। सो सम ऑफ द पैरेलल साइड, वन इज दिस वन साइड, वन इज दिस वन, दोनों की लेंथ को क्या करेंगे, सम कर देंगे और दोनों के बीच के क्या है हाइट बोलेंगे। तो इनकी वैल्यू हम निकालेंगे, हाफ क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ into sum of parallel side, one is this one that is equal to 4 and this one will be equal to our 6, then 4 plus 6 will be there। ये साइड हमारे पास क्या है 4, ये साइड हमारे पास क्या है 6, तो 4 plus 6 into हाइट, हाइट क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे पॉइंट क्या 3, इधर क्या पॉइंट है 4, तो 4 minus 3 then it will be equal to our 1 only। So here we can write there 4 to the 8 plus it will be equal to 1 by 2 into then 6 plus 4 we can write there 10 into 1 then it will be equal to your 5। So here we can write there 8 plus your 5। दोनों को सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और क्या निकाल रहे थे हम, वेलोसिटी निकाल रहे थे, तो वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आ गया, एरिया एंड चेंज इन द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आवर 13 मीटर पर सेकेंड। I hope you understood beta। In your ST graph, in your VT graph, in your AT graph, how we can find this term? Okay, again I am telling you, in ST graph, in your ST graph, in ST graph, okay, slope इक्वल टू आवर, ST ग्राफ के अंदर स्लोप हमारा किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल, वेलोसिटी के इक्वल मींस S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। एरिया अंडर द कर्व नोट डिफाइन, कोई डिफाइन ही नहीं होगी इसके अंदर। अगर एरिया अंडर द कर्व कोई टर्म निकाल रही हो, एरिया अंडर द कर्व in your this one ST graph, that is your undefined, we can't define this one factor। okay, in your VT graph we discuss, VT graph में हमने क्या डिस्कस किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने डिस्कस किया स्लोप विल बी इक्वल टू आवर, किसके इक्वल होगा स्लोप, एक्सेलरेशन के इक्वल, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय योर चेंज इन टाइम। और एरिया अंडर द कर्व इसी के अंदर किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द कर्व, कर्व इन योर VT ग्राफ, ओके, कर्व विल बी इक्वल टू आवर डिस्प्लेसमेंट, that is equal to V into T। clear? so in acceleration time graph, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप हम फाइंड करने की, स्लोप हमें कोई क्वांटिटी ही नहीं देगा, सिर्फ क्या मिलेगा हमें, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, और वो क्या देगा हमें, चेंज इन
velocity. Change in velocity that is equal to a into t. तो ये था बेटा ग्राफ पोर्शन कि अगर हमारे पास एसटी ग्राफ गिवन है तो कौन कौन सी क्वांटिटी फाइंड करें, वीटी ग्राफ अगर गिवन है तो कौन सी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन फाइंड इट. ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, देन विच क्वांटिटी एंड हाउ वी कैन फाइंड दिस वन क्वांटिटी. ओके, देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस देयर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग देयर ग्राफिकल मेथड. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी कैन ड्रॉ देयर ग्राफ and which quantity we can find there using graph. Thank you for watching today our video.